अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्लास स्टार्ट होने वाली है, 10 तक ज्वाइन ना करूं उसे? क्या नहीं, कैमरा ऑफ है, ये देख तो रहे थे, म्यूट भी है। चलो बाय। चलो मैं बाथरूम जाके आ रही हूँ, अभी तो सर ही नहीं है।
भी बंधा हुआ था। सारे नहीं है यार। घर की ट्यूबलाइट दिखती थी और चाहिए और चाहिए चाहिए
सर है ही नहीं अभी तो। पूछो। तो फिर अपनी पर्सनल क्लास पे देना चले गए। कौन से सर हैं? सर यही पढ़ाते हैं सर। जा रहे हैं बेटा। हाँ? और किसी ने टीचिंग लिखा का कि काम नहीं, करेंगे। क्या पूछा? किसी ने लिखा नहीं अभी स्टार्टिंग में। चलिए बाय। बाय। आज पता नहीं सर कहाँ है? कौन से सर? ये मयंक सर। Hi all, I hope you are able to hear me. Sorry to keep you waiting for 5 minutes, 7 minutes in fact. Actually, भूल गया था कि कैसे because every day I have to take classes, webinar. So I have forgotten. So I hope you can hear me. I'm going to share my screen now and okay. So let me just
share my screen. How many people are there? There are 15 people, including myself. So everybody, please mute yourself. I have muted everybody. Okay, so remain muted, please. And I hope you can see me. And if you are not able to hear my voice, please write to me. So कितने लोगों को मैं जानता हूँ? अनुष्का सिंह, अपूर्वा देव, and Sijan. Puneer, Karsh, Ved, खुशी. कितने लोगों को मैं जानता हूँ because they take classes in other batches also. And welcome to the other people. How many of you are taking their first class today? I have muted my computer, so I may not be able to. So you should write, okay? लोग हैं जिनका आज पहला क्लास. Okay, Shreya and Astha Raghav. तभी आप लोगों के नाम मैंने पहली बार देखे आज. Okay, a couple of other guys also are there, like Aman Pal. Have you attended last week's class also? Or Avinash Garg, Vipasha Sethi, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, धनंजय रॉय. ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैंने पिछले हफ्ते नहीं देखे थे. Maybe I'm wrong, but just confirm. Okay, so Aman, Astha, and Shreya till now have confirmed that this is their first class. So first of all, welcome guys. And secondly, अच्छा, okay. मैं भूल गया हूँ. ठीक है, धनंजय आप तो थे. So you three guys, at least Aman, Astha and Shreya, आप लोगों ने मेरे पिछले वाले क्लास का वीडियो देखा by any chance? या फिर आज एकदम से आज ही ज्वाइन किया और अच्छा देख लिया है? देख लिया है तो ठीक है, नहीं भी देखा है तो भी चल जाएगा. आज काम चल जाएगा. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा थोड़ा तो कनेक्टेड होगा because that was the first class in which I started telling you how to develop your and grow your speed in calculation. वहां से शुरुआत हुई थी. कैलकुलेशन स्पीड एनहांसमेंट ये था क्लास. हाँ, तो मैंने देखिए एक ओवरव्यू आपको जरूर दे देता हूँ. ये मैंने किया था लास्ट वीक 5th August, same day same time. So I started with addition. I told you that there are 5 things with 2-digit numbers that you have to do on daily basis. I hope कि ज़्यादातर लोग क्योंकि वो पिछले क्लास में भी थे तो उन्होंने ये प्रैक्टिस किया होगा on daily basis. This was something that would take you like 4 to 5 minutes, 3 to 5 minutes daily. 2-digit numbers, complement, add, subtract, double, half. I had explained to you all the things. कैसे आप 2 digit के numbers लेते हैं ये और फिर उनका complement, उनको double करना, half करना. फिर ये एक्सरसाइज हमने की थी 5 से डिवाइड करने वाली. तो ये चीजें हैं, काम की हैं. देखिए अच्छा लगेगा आप देखेंगे तो. ठीक है. Then we talked about squares of numbers near 100. Okay. Squares of numbers near 50. ठीक है. तो आज थोड़ा सा इसके आगे बात करेंगे. So the people who have seen the previous video and not only that they have been practicing also a little bit. ठीक है. थोड़ा बहुत अगर रेगुलरली लगे हुए हैं, चलो मैंने 10 मिनट 15 मिनट कहा था, आप 2 ही मिनट करते हैं, 3 मिनट ही करते हैं. तो आज जो मैं आपको बताऊंगा that will make more sense to you
compared to the people who are taking this as their first class. ठीक है, क्योंकि आज जो है वो एप्लीकेशन है, पिछली क्लास में जो बताया था उसका भी, तो कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पर वो बीच के स्टेप्स हैं, वहां पर आपको ऐसा फील होगा कि यार ऐसा करने का फायदा नहीं है, इससे तो हम अपना पुराने वाले मेथड से ही करेंगे जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो वो फीलिंग इसलिए आएगी क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया पिछले एक हफ्ते में जैसे करना चाहिए था। तो I'm going to talk about some special multiplications. Okay. मैंने आपको पिछली बार कहा था कि आप हर चीज से बच सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं बच सकते। इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन भी एक तरह से एडिशन है, ये बात हमने की थी और इसी को हम लेकर आगे आज चल रहे हैं। ओके, सो देयर आर सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशंस लाइक आपको किसी का भी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, याद है तो वो एडेड एडवांटेज है, नहीं है तो भी अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रखते हैं, डबलिंग हाफिंग स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो देखा जाए तो 13 का टेबल मुझे भी याद नहीं है, या ये कहें कि याद नहीं था। ओके, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो 13 ऑनवर्ड्स मुझे भी टेबल याद नहीं था। हाँ, 15 का बहुत आसान होता है, वो याद था, बट 13, 14, 16, 17, 18, 19 ये मुझे नहीं याद थे। और आज भी एकदम से पूछा जाए तो नहीं याद है, एकदम रटे हुए नहीं है, लेकिन जुगाड़ ऐसे फिट कर लिए हैं दिमाग में कि पूछो तो एकदम रटा हुआ तो नहीं, बट हाँ 2 सेकंड में आंसर आ जाता है, तो सुनने में ऐसा लगता है कि अच्छा कई सारे तो याद ही हो जाते हैं। ओके, तो I had told you last time already that multiplication by 4, 8, 16 इनके बारे में बात की थी कि ये सब 2 के पावर्स हैं। 4 is 2 square, 8 is 2 cube, and 16 is 2 to the power 4. So whenever you are to divide by or multiply by 4, 8 and 16, do not literally do that, rather double it as many times or half it as many times. ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था लास्ट टाइम कि एक जनरल सा एग्जांपल था। एक आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो कैट में एक आया था। कैट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक्चुअली यू हैव टू चेक ऑप्शंस, है ना, एंड ईच ऑप्शन टू चेक यू हैव टू डू सम मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे उसमें ऐसा था, सो 28 into 16, ओके, एंड 14 into 32, ऐसे करके चीजें थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्वेशन की नजर अपनी हमेशा तेज रखिए। देखिए ये हाफ हो गया है और ये डबल हो गया है, सो बेसिकली बोथ आर द सेम प्रोडक्ट। और ना तो आपको 14 के टेबल की जरूरत है, ना ही 16 के टेबल की जरूरत है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो यू कैन स्टिल मैनेज। लाइक 16 यू नो इट्स 2 to the power 4, तो 28 को 4 बार डबल करना है, तो 4 बार डबल करते हैं, 56, 112, 224, 48। इस तरह से 14 को आप 5 बार डबल भी कर सकते थे, वही 28 हो जाता और फिर 4 बार डबल करना ही था, तो इस वजह से भी आपको समझ में आ जाता कि both are same. So actually when multiplying by 4, 8, 16 etc, you don't really need to multiply by those numbers. Okay, तो एक तो बात ये हो गई। अब देखते हैं multiplying by 11 and 9। Okay. अब जैसे मान लीजिए 56 into 9 है, इससे मुश्किल नहीं है। 9 into 6 is 54, then 5 carry, then 9 into 5 45 and 5 504। यही सब करेंगे और यही आप भी करेंगे। लेकिन अगर आपके कैलकुलेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन स्ट्रांग है, so you can write it like, not write, think it like 560 minus 56 and so 504। ये लिखने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम नहीं लगता है। ये एक्चुअली 9 से मल्टीप्लिकेशन से कम टैक्सिंग भी है और कम टाइम टेकिंग भी है। So what I really did is I just expressed 9 as 10 minus 1, and that is what I always do. Okay, तो ये बन गया 560 minus
56. Okay. In fact, I should write 11, 9 and 19. सब में क्योंकि एक ही जैसा काम है. अब चलिए 9 का टेबल तो आपको वैसे भी याद होता है. What if it was 56 into 19? फिर क्या करते? 19 को लिखते 20 minus 1. ओके, 56 का डबल. ये जो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, 5 चीजें करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डबलिंग, हाफिंग, उसी के बल पे हम खेलेंगे. We will be using only those techniques only. तो ये हो गया 112, 0 minus 56. तो भाई सब्ट्रैक्शन कैसे हवा में करें? तो देखो 20 पहले माइनस होगा, फिर 36 बाद में माइनस होगा. 100 में से 36 जाएगा तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट वाली चीज काम आई. 64 बदले में ये हो गया 1064. इतनी जल्दी आप मल्टीप्लाई तो शायद नहीं कर पाते unless the tables of 19 etc are mugged up. ठीक है. 11 का केस थोड़ा और स्पेशल होता है. ठीक है, तो जैसे नंबर है 3, 2, 4, 5 into 11. ओके, तो वैसे तो क्या है, आप इसे लिख सकते हैं 3, 2, 4, 5. ऐसा मन में सोचेंगे, so it will become 3, 2, 4, 5, 0 plus 3, 2, 4, 5. But you know, writing all this takes a lot of time. So 50 plus 45 is 95 and 24 and this is 56 and then 3, 3, 5, 6, 9, 5. Acha, what I can suggest you to do is, this was the number. So iska ek shortcut hai. So imagine, and now listen very carefully. Okay, this part you may want to note down right now. Even if you don't, it's okay. You will get the video by tomorrow and you can then note it down. So मान लेते हैं कि there is a 0 on the left hand side and also on the right hand side of the number, and then what you do is add each digit to its right. जैसे 5 plus 0 हो गया, 4 plus 5 हो गया, 2 plus 4 हो गया, then 3 plus 2 हो गया and 0 plus 3 हो गया. देखिए आ गया वही आंसर 35695. So what you really do is, देखिए 32450 plus 3245 is what you are supposed to do. तो देखिए आप वही काम करते हैं, हर डिजिट को अपने राइट में जोड़ रहे हैं. 5 plus 0 वही हो रहा है ना, 4 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 2 and 0 plus 3. तो ये एक टेक्निक है. ऐसे ही आप 9 का भी सोच सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, कभी कोई माइनस नहीं होता है तो बोरो करो, उसमें दिमाग में कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है. लेकिन 11 से मल्टीप्लिकेशन में आप अक्सर ये चीज हमेशा कर ही सकते हैं. ये अगर टेक्निक आप भूल भी जाएं तो ये तो हमेशा याद रहेगा ही, that 11 is 10 plus 1, so you can actually convert it into addition rather than multiplication. ये देखिए 11 का टेबल तो सबसे आसान होता है, everybody would know the table of 11. Still अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको टेबल पढ़ना, बार बार लिखना, एडिशन, स्टेप्स कम हो जाएंगे दिमाग. ओके, तो अब नंबर अगर बड़े बड़े डिजिट्स का होगा, जैसे 7, 8, 9, 6, 5. ओके, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है. देखिए 5 plus 0, then 6 plus 5, 11, 1 कैरी, हमेशा दिमाग में 1 कैरी रखें. 9 plus 6, 15, 16, again 1 carry. 8 plus 9, 17, 18, 1 carry. 7 plus 8, 15, 16, 1 carry. And then 7 plus 1, 8. बस कैरी ओवर दिमाग में रखें. अगेन एडिशन, एडिशन का जितना ज्यादा आपको आदत रहेगा उतना अच्छा ये रहेगा रिस्पॉन्स. ओके, so any number you have to multiply by 9, 99, 19, you know, any such thing. So you can actually go about it like this. तो जैसे मान लीजिए कि 99 into 9 है, इसमें आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना. तो ये 900 minus 9 हो जाएगा, ये 990 minus 9 हो जाएगा. Oh sorry, 990 minus 99, right? So this way also, or you could also have done 100 minus 1 into 10 minus 1. एक situation है बस, you would not want to do 1000 minus 100 minus 10 plus 1. So it will end with 1 and 110 subtracted. तो कभी अगर फंस जाए कोई, ये तो चलिए बहुत आसान एग्जाम्पल था,
So you can actually use algebra like this to crack those kind of multiplications. Okay. और बाकी मैंने आपको the numbers ending with 5 उनका तो बताया ही था. So whenever you have to multiply by numbers like 15, 25, 35, 45, 55, तो हमेशा उनको something by 2 के फॉर्म में लिखिए. तो जैसे 72 into 35 है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 36 into 70 लिखेंगे, तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए, है ना? 36 into 70 लिखेंगे. और भी तरीके हैं इसके. देखो 7 का टेबल आपको याद है, तो 7 6 42 and 7 3 are 21 25 2520 आंसर हो गया. और क्या तरीका था कि आप लिख सकते थे this as 2 into 36 into 35. Okay, now 36 into 35 ये करना ज्यादा आसान रहेगा by doing it 35 square plus 35. Okay, 36 into 35 is like this. मैंने आपको बताया था पिछली बार consecutive numbers आ जाए तो आप squares की तरह उनको डील कर सकते हैं. और 35 का स्क्वायर स्पेशली इजी होता है. We had talked about it last time also, that numbers which end with 5, their square is really easy. So अच्छा, आप लोगों ने कुछ लोगों ने अमेज़न प्राइम पे शकुंतला देवी देख ली होगी अगर मूवी, तो वहां पे उन्होंने भी सिखा दिया कि ये नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं. इस तरह से करते हैं 2450 2450. ओके, अच्छा इसमें 35 प्लस भी तो करना था. So this becomes 1260 का डबल और 126 का डबल 252 2520 ये भी लिख दिया. ठीक है, तो ये ओवरव्यू हुआ कुछ मल्टीप्लिकेशंस का. मल्टीप्लाइंग बाय 11 9 and 19. ओके, अब I want to tell you multiplication of numbers near 100. okay? कभी बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर नंबर्स दोनों बड़े बड़े हैं, 100 के आसपास हैं, तो कैसे डील करें? अब देखिए जैसे एक नंबर बड़ा था 72, एक नंबर छोटा था, तो आपने उसको किसी तरह क्रैक कर दिया. दोनों नंबर्स बड़े हो तो कैसे करेंगे? So I will take some examples like when both the numbers are greater than 100. Okay, so let me take 104 into 112. Okay, or maybe 109 into 107. Okay, and 113 into 100. क्या किया जाए? 101. वैसे 101 तो बहुत आसान होता है. 2 दे देते हैं. ठीक है, तो देखिए इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस. ओके, इट्स 2 स्टेप प्रोसेस. तो सबसे पहले आपको देखना होता है that this number is greater than 100 by 4, this number is greater than 100 by 12. You have to multiply these two numbers. Whatever they make, they will make your last 2 digits of the answer. 12 into 4 is 48. Okay, okay. What over here? Plus 9 and plus 7.
यहाँ पर क्या बनाएंगे 63 the last 2 digits here plus 13 and plus 2 so 26 last 2 digits okay last 2 digits is 26 okay and okay बाकी का क्या करें तो बाकी के लिए क्या करते हैं we add the diagonally opposite numbers तो जैसे 104 and 12 को ऐड कर दीजिए आप इनको भी ऐड कर सकते हैं तो भी वही बात होगी 112 में 4 ऐड कर दो या 104 में 12 ऐड कर दो तो बेसिकली इट्स 106 इज योर आंसर ओके इनको ऐड करिए 100 यहाँ भी 116 बन रहा है यहाँ 115 बन रहा है चेक कर लीजिए भाई यही है आपका आंसर कि नहीं ओके so it's a two-step process first you have to just express देखो ये सब लिख के मैंने आपको दिखाया है इतना सब आपको नहीं लिखना होता है आप तो कैसे करेंगे आप तो बस ऐसे करेंगे कि जैसे नंबर है आपको दिया गया है कि भैया 106 और 109 मल्टीप्लाई कर दो तो आप तो देखोगे 6 ज्यादा है 9 ज्यादा 9 6 54 एंड मन में अगर सोचने में कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लीजिए ये +6 है तो 109 + 6 हो जाएगा 11554 आंसर हो जाएगा okay now let us take the analogy down what if both the numbers are smaller than 100 so 93 into 98 ऐसा है बिल्कुल वही प्रोसेस है जस्ट थिंक इन योर माइंड कि कितने कितने छोटे हैं ये 100 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है तो -7 into -2 eventually will make +14 so +14 becomes your last 2 digit और क्रॉस एडिशन कर दीजिए 93 - 2 91 by the way 98 - 7 is also 91 तो आप दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए जो आपको आसान लग रहा है तो 9114 becomes your answer okay so let me take 89 into 93 okay so this is -11 this is -7 so 11 7 77 और इनको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8277 becomes your answer so last time आपको एक टेक्निक सिखाया था to find out squares of numbers near 100 so basically it is that technique is actually an application of this only इसी का एप्लीकेशन है ठीक है एक लास्ट और देख लेते हैं बस what if one number is greater than 100 and the other number is smaller than 100 so जैसे 104 है और यहाँ 93 है तो आप मन में क्या सोचेंगे ये तो भाई +4 है और ये -7 है तो एक्चुअली क्रॉस करके तो आपके दिमाग में पहले ही हो गया कि 97 बनेगा लेकिन अभी पंगा ये है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज अ नेगेटिव नंबर -28 ओके -28 एंड इनको ऐड करके 97 बन रहा है तो बेसिकली व्हाट इट मेक्स इज दिस देखो पिछली बार दोनों केसेस में प्लस बन रहा था तो जैसे ये +77 बना तो आपने सीधे उनको लास्ट 2 डिजिट चिपका दिया now it is -28 now you know that the last 2 digits of your number cannot be negative you know -28 नहीं हो सकता तो basically it will be subtraction of 28 from whatever comes 9700 में से 28 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट वाली चीज काम आएगी सो 72 9672 इसी बात को थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए दिमाग में ताकि आपको ज्यादा जोर ना पड़े आप कैसे करोगे 104 93 okay so this is -7 this is +4
तो -28 है ना, तो आप 100 -28 लिखो सीधे, और बदले में जो भी बन रहा है, जो भी बनेगा क्रॉस एडिशन करके उसमें से एक हटा देना, ये मान के कि आपने बोरो करवा दिया है। तो 97 बन रहा है तो 96 लिखिए। ऐसे ही एक और ले लेते हैं एग्जांपल। ओके, सो व्हाट अबाउट 89 into 109? दिस इज -11, दिस इज +9, तो -99, तो हम क्या लिखेंगे 100 - 99, 01, और इनको आपस में जोड़ दो तो 98 बन रहा है, तो मैं 97 लिखूंगा, 9701। एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छा होना जरूरी है, फिर ये चीजें आपको अच्छी लगेंगी। नहीं तो आपको लगेगा कि यार कौन याद रखेगा, इसमें तो गलती हो जाएगी, और इसमें भी तो इतने सारे स्टेप्स हैं। लेकिन ये स्टेप्स उन स्टेप से आसान है। बेसिकली यू आर नॉट सपोज टू मल्टीप्लाई एनीथिंग। आप एक एक डिजिट के नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे सोचो आपको कितने स्टेप्स में करना पड़ता है। देयर आर सो मेनी मल्टीप्लिकेशंस, यहाँ पे मेजरली इट इज एडिशन। ठीक है, इसी तरह से 200 के आसपास के नंबर्स, 300 के आसपास के नंबर्स, 500 के आसपास के नंबर्स, सबके अलग अलग टेक्निक है। लेकिन आज मैं सिर्फ 100 तक बता के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, जैसा हमारा अपब्रिंगिंग है, एकेडमिक अपब्रिंगिंग आई मीन, ओके, नॉट योर हाउस होल्ड अपब्रिंगिंग, डोमेस्टिक अपब्रिंगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक अपब्रिंगिंग की बात कर रहा हूँ। इस तरह से हमारी एकेडमिक अपब्रिंगिंग है, हमारी आदत होती है याद करने की, वी ओनली मेमोराइज द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रैक्टिस ना होने पर जब हम सब कुछ सिर्फ रटने लगते हैं, तो इट बिकम्स टू मच बर्डन फॉर द ब्रेन। यार ये भी याद रखो, और वो 200 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको डबल करना है, ये वो बहुत सारे पंगे। फिलहाल 100 का ही रखते हैं। सो द नंबर्स नियर 100, उनको मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत ज्यादा पंगा ना हो, तो ऐसा है। और अगर एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है, तो उसमें तो डबल हाफ करके आप स्क्वायरिंग वगैरह का हेल्प लेकर काफी अपने मन माफिक काम कर सकते हैं। ओके, तो एक बात ये हो गई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज ब्रह्मास्त्र, कि कुछ भी काम ना करे तो ये तो पक्का करेगा। 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन, वैदिक मैथ्स टेक्निक। 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विद अ 2 डिजिट नंबर। तो मैं एक आसान सवाल पहले ले रहा हूँ। सो व्हाट इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 23 into 32, इजी नंबर्स फर्स्ट। वैसे तो मैंने आपको 23 into 32 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 32 is 2 to the power 5। सो सबसे आसान तो है कि मैं उसे 5 बार डबल कर दूं। 23 का डबल 46, 46 का डबल 92, देन 184, देन 368, ओके 368, देन 736, इट इज गोइंग टू बी 736। देखिए आपको बहुत अननेचुरल लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे डबल कर देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको सालों का रियाज करना है, बहुत आसानी से प्रैक्टिस एक हफ्ते के अंदर आपको हो जाएगी। All you have to do is double a few two-digit numbers on daily basis, तो एक तरह से डबल्स याद हो जाएंगे। 736 इसका आंसर सबसे आसानी से ऐसे आ सकता है। वैसे मान लो कि हर बार तो किस्मत इतना साथ नहीं देगी ना कि 32 जैसा नंबर मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, तो एक प्रोसेस है जो एक आप ये करते थे कि भाई 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐड किया, तो इट वाज अ 3 स्टेप प्रोसेस व्हिच यू हैड टू राइट सो मच। अभी भी एक 3 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन वो इतनी जल्दी होगा। 6 4 9 13 और 6 7, इतनी आसानी से आ जाएगा। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस। अभी आप नोट करना बंद कर दीजिए, ध्यान से देखिए। देयर आर 3 स्टेप्स that I'm going to explain to you by writing. However, strictly you do not have to write so much. आपको मालूम होना चाहिए कि आपको इतना लिखना नहीं है, ये सब दिमाग में करना है, जैसे मैंने अभी किया था। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। After I'm done with this, you can take a snapshot of this. तो सब आपको सिर्फ समझाना है।
पहला स्टेप वही जो हमेशा हुआ करता है, वही जो आप नेचुरली वैसे भी करते हैं, 2 into 3 6। ओके, तो पहला स्टेप डन, पहला स्टेप डन, इतना ही है। नेक्स्ट स्टेप डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। So 4 plus 9, add the two. 4 plus 9, 13 and 1 carry over. Second step over. Third step, last step जो आप anyway करते हैं, 3 into 2 6 and then 1 7. तो ये है so called 3 steps जिनको आपको मन में करना है। ओके, तो मैं एग्जांपल्स और लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज अ टेक्निक विच जनरली इज प्रैक्टिस्ड मैक्सिमम बाय द स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जुगाड़ पैदा हो जाएगा और आपको ये करने की नौबत नहीं आएगी। जैसे मैंने 23 32 लिखा और आपको पहले ही करके दिखा दिया कि 32 को 2 की पावर 5 सोचो और 5 बार डबल करो, तो वैसे ही जल्दी हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हर चीज का निकल ही आता है, लेकिन फिर भी चलिए, आई विल टेक अनदर एग्जांपल लाइक what if there are ugly numbers like 47 and 76। ये करना है तो बस कैरी ओवर बड़े बड़े आ जाएंगे और कोई टेंशन नहीं है। तो पहला स्टेप मेरे दिमाग में क्या, 7 into 6। पहला स्टेप मेरे दिमाग में 7 into 6 42। ओके, 2 4 कैरी, या तो आप कहीं किनारे लिख लो 4 और या फिर ऐसे उंगलियों पे अपने देख लो। ओके, 4 कैरी। नाउ ये बनेगा 24, पहले 4 ऐड कर लो 28, बर्डन खत्म हुआ। 28 and 49, it is same as 27 plus 50, it is 77। ओके, 7 कैरी हो गया। अब लास्ट ये वाला 28 and 7 35, 3572 becomes your answer। अगर आपको लग रहा हो कि यार ये बेकार है, हम भैया अपना वही करेंगे पुराना वाला, जिसको जिसको भी ऐसी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब उन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है जो चीजें मैंने आपको पिछले हफ्ते कही थी करने के लिए। इस एक हफ्ते में तो आपको महारत हासिल हो जाती है। ठीक है गाइस, देखो बात पे, इस पॉइंट पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एंड आई विल टेक लाइक 2 minutes of yours to actually tell you this। हाँ, खुशी ने देखो एक टेक्निक बताया है मुझको, जो मैं बताना चाहता था उसके पहले आपको बता दूं ये चीज। ये खुशी ने कहा है कि 47 into 75 कर लीजिए और फिर एक बार 47 और ऐड कर लीजिए। ये भी कर सकते हैं। 75 को फिर आप 150/2 लिख सकते हैं या फिर 300/4 लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको लगे कि यार बेकार में टू मेनी स्टेप्स आर बीइंग एडेड, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट last time I congratulated you all that you are starting so fast, so early, sorry, not fast. You are starting so early, so you have a lot of time. So I can tell you a lot of things that you can strengthen, which will help you not only with the preparation of CAT, but even after that, during your MBA days and even after your MBA, these things will help you. लेकिन ये जो टाइम ज्यादा अपने हाथ में होता है जब, तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट भी है। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, क्योंकि हर चीज का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट भी होता है। तो देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनीथिंग। यू नो, कोई भी चीज आपको बहुत अच्छी दिख रही है ना, उसका भी कुछ नेगेटिव होगा ही, छोटा हो बड़ा हो, आप उसमें से पॉजिटिव निकालें नेगेटिव निकालें, सब आपकी बात है, लेकिन होते दोनों हैं, एग्जिस्ट दोनों करते हैं। ओके, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। When I started my career in this industry, तो मैं पहले MBA के दिनों में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। उस टाइम पे क्या था, I was a student myself in MBA, तो मेरा मेन काम तो अपना MBA था, उसको मैं कंप्लीट कर रहा था और बस पार्ट टाइम क्लासेस लेता था। क्लासेस लेना अच्छा लगता था, पैसे बन जाते थे, खुशी होती थी बहुत, तो बस इसलिए करते थे और मजा आता था।
लेकिन slowly and gradually when I decided to make this my career, and then I completed my MBA, and after that I joined coaching institute to teach full time. तो कई सारे रिसर्चेस पहले 1-2 साल में बहुत सारे रिसर्चेस मेरे सामने आए. मैं आपको वो रिसर्चेस बताता हूँ आज की क्लास में. थोड़ा सा मैं आपका 2 मिनट टाइम 5 मिनट लेकर, और ये आपको जितनी जल्दी पता हो जाए चीजें उतना अच्छा है. देखिए गाइज, क्लास ना सिर्फ सवाल सीखने के लिए नहीं होती, कई सारे फैक्ट्स जानने के लिए भी होती है. तो हम लोग के एक्सपीरियंसेस से अगर आप सीखेंगे तो वो ज्यादा स्मार्ट काम होगा. गिर के तो सब समझ जाते हैं, आदमी दूसरे का गिरना देख के खुद समझ जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे स्मार्ट बात है. तो यू नो आई स्टार्टेड माय करियर विद वेरी बिग ब्रांड टाइम. आप लोगों को सबको पता होगा टाइम कोचिंग. कई सारे लोग उसे टाइम्स बोलते हैं. ओके, तो अब सबको तो करेक्ट नहीं कर सकता कोई. एंड सो इट्स नॉट टाइम्स, इट्स टाइम. ओके, टाइम्स तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप हो गया ना, वो अलग चीज है. टाइम इज अ साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी, साउथ इंडियन कंपनी बेसिकली, सिकंदराबाद, हैदराबाद. वहां से हमने शुरू किया था. मैंने शुरू किया दिल्ली में, टाइम दिल्ली में पढ़ाना. तो मैंने क्या देखा, जो मेरा होम सेंटर था वहां पर देयर वर लाइक 6 क्लासरूम, 6 क्लासरूम्स. एंड वहां पर वीकडे में 9 बैचेस थे, नहीं सॉरी 11 बैचेस थे. वीकडे में 11 बैचेस थे, 6 क्लासरूम्स एंड 11 बैचेस. तो मैं समझ सकता था कि हाँ भाई 11 बैचेस होते होंगे, क्योंकि सारे 11 बैचेस एक ही टाइम पे थोड़ी होते हैं और एक ही दिन थोड़ी होते हैं, वो समझ में आता था. पर वीकेंड के देयर यूज्ड टू बी 14 बैचेस. वीकेंड पे तो हर बैच की दोनों दिन 2-2 क्लासेस होती हैं. ठीक है, तो जो भी मतलब मैं पूरी टेक्निकलिटी नहीं समझा रहा हूँ, आप बोर हो जाओगे, कंफ्यूज भी हो जाओगे. तो मतलब मैंने कैलकुलेशन करके देखा, तो मैंने कहा यार इतने बैचेस तो कैसे चलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, इतने बैचेस कैसे चल सकते हैं. तो मुझे वहां के सेंटर मैनेजर ने बताया कि सर ये जो A और B बैचेस हैं, A बैच यूज्ड टू बी a weekend batch which started in the month of August for next year CAT. आपका बैच अगस्त में शुरू हो रहा है नेक्स्ट ईयर कैट के. इसको हम बोलते थे वहां पर सुपर लॉन्ग टर्म बैच, SLT बैच. ओके, सो सुपर लॉन्ग टर्म बैच है, 15 महीने का इनके पास टाइम है. कई सारे लोग इसी अगस्त में इसी साल के कैट के लिए भी ज्वाइन करते हैं इन द क्रैश कोर्स. सोचो उनसे पूरा 1 साल ज्यादा है, कितना डिटेल में हम उन्हें सिखा सकते हैं, कितना टाइम है उनके पास ऑर्गेनिकली ग्रो होने के लिए. तो ए बैच बनता था, फिर 1-1.5 महीने बाद बी बैच बन जाता था. तो वो बोलते थे कि उन्होंने बताया कि अभी देखना, ए बना है अगस्त में, सितंबर एंड तक बी बन जाएगा, और जनवरी आते आते ये ए और बी कंबाइन होकर एक ही क्लासरूम में आने लगे. अरे ऐसा कैसे हो सकता है, 40 बच्चे ए में हैं, 40 बच्चे बी में हैं, हमारी सीटिंग कैपेसिटी ही 40-45 है मैक्सिमम. चलो किसका किसका के कुर्सियां रख लेंगे तो 50 हो जाएगा. हाउ कैन वी अकोमोडेट 80 स्टूडेंट्स, व्हाट इफ ऑल 80 कम इन द क्लास. उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा होगा नहीं. तो उनका हिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने इसका रिसर्च करके रखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 50% स्टूडेंट्स विल स्टॉप कमिंग. 40% तो कहीं नहीं गया, 40% स्टूडेंट्स विल स्टॉप कमिंग आफ्टर 3 months. और ऐसा हुआ, A प्लस बी बन गया, आगे जाकर C और D बने, 2 महीने बाद वही C प्लस D हो गया, फिर E और F बने, वो भी जाके E और F हो गए. ओके, तो एक तो ड्रॉबैक ये है कि जो लोग जल्दी शुरू करते हैं वो जल्दी ही लूज भी कर देते हैं. जो एम है और जो इंथुजियाज्म है वो लूज हो जाता है जल्दी. क्या होता है कि हमारे दिमाग में बैठा होता है कि अभी तो बहुत टाइम है. ओके, एंड वी ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू थिंक अबाउट द करंट टेंशन. तो अभी ज्यादा प्रायोरिटाइज द करंट प्रॉब्लम. तो एक जो है कि भाई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जॉब वाले लोग हैं, जरा सा कहीं प्रेशर आया कॉलेज की तरफ से या जॉब की तरफ से, तो इसको साइड लाइन कर दिया और पूरी तरह से उसमें कॉन्सेंट्रेट करने लगे. तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि आउट ऑफ टच हो जाता है. सुपर लॉन्ग टर्म बैचेस जो होते हैं उनको ब्रेक्स भी बहुत मिलते हैं,
एग्जाम है साहब, सेमेस्टर का एग्जाम है या कुछ है, 15 दिन का ब्रेक दे दिया। यूनिवर्सिटी एग्जाम है, 1 महीने का ब्रेक दे दिया, 28 दिन 30 दिन का ब्रेक। तो उस ब्रेक के पहले मान लीजिए कि इक्वेशन, रेशियो, परसेंट, ये 3 चैप्टर हो गए, एवरेज हो गया। तो ये चैप्टर्स हो गए, फिर लौट के आए तो हमने इनके एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। फिर जो इनके अंदर टेक्निक सीखी थी वो यूज होने लगी, और ये तो किसी ने रिवाइज किया नहीं ना, उसी टाइम पढ़ते थे, और 1 महीने के ब्रेक में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गए। तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो हो गई यार, तो दो वहां से वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग बैच शिफ्ट करवा लेते हैं। फिर उस टाइम जो बैच एडमिशन ले रहा होता है, क्योंकि वो 6 महीने निकल गए, 15 में से 9 महीने बचे, हम कहते हैं चलो 9 महीने ही बहुत होते हैं, फिर वहां से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से वो पूरा एडवांटेज जो उनके पास जो पूरा था वो पूरा खो चुके होते हैं। ओके, तो ये जो जील है ना अभी जो आपके अंदर है कि हम IIM क्रैक करेंगे, हम कैट क्रैक करेंगे, आई ऑल्सो हैव इट टू स्कोर 99 percentile. I also believe so, that each of you has that caliber and now that kind of time also to crack 99 on CAT. लेकिन वो रास्ता जो है थोड़ा उबड़ खाबड़, थोड़ा आपको उसमें कहीं कहीं स्ट्रगल आएगा, कहीं कहीं पेशेंस टेस्ट होगा आपका, कहीं कहीं आपका मोटिवेशन टेस्ट होगा, सेल्फ मोटिवेशन जो है वो सब टेस्ट होगा। तो ये चीजों से हारना मत, तुरंत कॉम्प्रोमाइज मत कर जाना, छोड़ मत देना ये सोचकर कि अरे यार कैट जो है सबके बस का नहीं होता है, अब हम समझ गए कि क्यों लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। आप गलत समझे, अगर आप ऐसा कुछ समझे तो मैं आपको बताता हूँ लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको जो फीलिंग पहली क्लास में आई थी वो फीलिंग चौथी क्लास या 10वीं क्लास में नहीं आती है। ये प्रॉब्लम है, वो उस मोटिवेशन के साथ हर क्लास अटेंड नहीं कर पाते। कुछ दिनों में जहां पहला क्वेश्चन फंसा, जहां आपका पहला आंसर गलत हुआ, वहीं से मोटिवेशन नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज मत होने दीजिए। अगर आप ये मैनेज कर लेगा तो कोई नहीं रोक सकता। एवरेज स्टूडेंट, अपूर्वा, आई वांट टू टेल यू, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स कैन स्कोर 99 परसेंटाइल। चलो मैं आपको अपना केस बताता हूँ। इंजीनियरिंग में मैं 60 लोगों की क्लास में मेरा रैंक 57 आता था। In a class of 60 people, my rank used to be like 57, 58, 56, ऐसा। I was a horrible scorer. So सोसाइटी तो हमें ऐसे ही जज करती है ना कि आपका मार्क्स कितने आ रहा है, स्कोर कितना आ रहा है। और 10th 12th में भी मेरे पास कोई बहुत तगड़ा स्कोर नहीं था। 10th में आई हैड 74% फ्रॉम स्टेट बोर्ड, ठीक है, और 12th में आई हैड 67.4% अगेन फ्रॉम स्टेट बोर्ड। दोनों एग्जाम्स में एक एक सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर मिल गए थे, जिसकी वजह से पूरा, और बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 3 इस तरह का होता नहीं था वहाँ। खैर अब ये सब एक्सक्यूजेस है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आई वाज एग्जैक्टली दैट एवरेज स्टूडेंट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। So 74% in 10th, 67% in 12th, then second division in graduation, and second division IIT NIT में आया होता तो अलग बात थी, सड़क छाप कॉलेज के अंदर second division स्कोर लाकर। मेरी पूरी क्लास ने कैट लिखा था, पूरी जो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास थी सबने कैट लिखा था उस साल। मेरी लगभग, मतलब ऐसे 5-7 लोगों को छोड़ दो, तो मेरी पूरी क्लास ने कैट लिखा था। और मेरे आए थे 97 परसेंटाइल, और मेरे अलावा पूरी क्लास में किसी और का 80 भी नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि मैंने एनालिटिकल दिमाग अपना जिंदा रखा था। वो जो ऑल लेवल पर जो स्कोर करने के लिए जो दिमाग चाहिए होता है वो मैंने यूज नहीं किया था, इस वजह से मेरा कॉलेज में स्कोर नहीं आता था। बट एनालिटिकल माइंड को मैंने जिंदा रखा था। ओके, आई यूज्ड टू एनालाइज आफ्टर ईच ऑफ माय मॉक परफॉर्मेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। उन सबको मैं अच्छे से एनालाइज करता था, देखता था क्या कमी रह गई, आगे क्या करें। तो ये काम जो है, और ऐसा करके एंड मैं जिन कॉलेजेस में कभी पहुंच नहीं पाया उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को फिर मैंने पढ़ाया। आई हैव टॉट IITians,
for various exams for GRE and GMAT and CAT and IAS. Okay, and IITs and ITs के लोगों को मैंने पढ़ाया. मेरा पहला ही साल जो था, फर्स्ट ईयर ऑफ टीचिंग, फुल टाइम टीचिंग, उसके अंदर I was given a batch. I was just 25 years old and I was given a batch in which there were only 8 students. 5 of those had rejected IIM Indore and Kozhikode admits. मतलब उनके अंदर इतना जुनून था ABC में जाने का कि उन्होंने इंदौर और कोझिकोड के कॉल्स, एडमिशन रिजेक्ट कर दिए थे और दोबारा तैयारी कर रहे थे. अब ऐसे लोगों का मुझे बैच लेना था. तो बहुत रोलर कोस्टर राइड रहा है, बहुत सीखने को मिला है. with every challenge there is a promised adventure and there is a promised learning. ये एटीट्यूड रखिए और आप कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे. तो ये जो मेरे अर्ली ईयर्स में, मेरे करियर के अर्ली ईयर्स में बहुत चैलेंजेस आए. यू नो 1.5 years लेटर, जब मैं 26.5 साल का था, तो IAS के लिए बहुत बड़ी कोचिंग एक है, वाजीराम एंड रवि नाम से, आपने शायद नाम सुना होगा, कोई आपके बड़े भैया दीदी, या हो सकता है आप ही को लगाओ कि तैयारी करते हैं. वहां पर मैं पहुंचा. आई वॉज द यंगेस्ट एवर फैकल्टी ओवर देयर. मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्राउड को कैसे मैनेज करूं. 400 लोगों का क्लास होता था. एक बैच, वन बैच यूज्ड टू बी 400 पीपल. रैंप पर खड़े होकर हम लोग कॉलर माइक लगा के पढ़ाते थे. All the other faculties were 40s, in their 40s. I was 26 years old. आधा क्लास मुझसे बड़ा होता था उम्र में, क्योंकि IAS का जनरल का एज लिमिट 30 था, बाद में तो और 32 हो गया था, और OBC SC ST का तो और ज्यादा एज लिमिट था. तो वहां पर जो चार्जर तो कनेक्टेड है यार. अच्छा, अभी लाइट चला गया इसलिए वो अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा. तो वहां पर ये जो अर्ली चैलेंजेस आए, तो इनसे मुझे बहुत सीखने को मिला. आई embrace those challenges with open arms and मैं आपको बताता हूँ कि मेरे करियर के पहले 3 साल में मुझे इतना एक्सपीरियंस था जितना हमारी इंडस्ट्री में 5 से 8 साल के लोगों को एक्सपीरियंस में जिनको जितना होता है, इतना मुझे हो गया था. तो एक्सेप्ट चैलेंजेस. कोई भी जरा सा भी चैलेंजिंग लगता है तो उसको देखकर आप अपना मन मायूस मत करिए, ये सोच के अरे यार क्या है ये, क्यों आ गया है क्वेश्चन, क्यों ये सब करना पड़ता है, इट इज सो अनफेयर, लाइफ इज सो अनफेयर. ये सारी चीजें दिमाग में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू हैव चोजन द पाथ. किसी ने आपके ऊपर इम्पोज तो नहीं किया कि जाओ जाकर कैट निकालो और ऐसा. आपने खुद चूज किया है. आई मीन 99% पीपल आर लाइक दैट. आपने खुद चूज किया है. तो फिर बी एनालिटिकल एंड बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. यू हैव चोजन, सो अब आपने चूज किया तो उसमें सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता ना. कुछ चीजें ऐसी भी होंगी आपको नहीं पसंद होंगी, आपको उनमें करना पड़ेगा काम. तो टेक एवरी चैलेंज ऑन इट्स फेस वैल्यू. ओके, एंड और हर चैलेंज के साथ आपको एक प्रॉमिस्ड एडवेंचर और एक प्रॉमिस्ड लर्निंग जरूर मिलेगा. तो एक दो लोगों के छोटे छोटे क्वेरीज हैं, लेट मी आंसर. College studies also, we have got regular classes, we have to go to college regularly, attend class, involves a lot of time. How to set everything? दोस्त, ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है. हालांकि यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ओके, एक एवरेज पर्सन की यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू सेट योर शेड्यूल, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो इससे कैसे डील किया जाए, मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, शायद आपके काम आ जाए. तो देखो भाई, आप भारत में कोई भी कॉलेज में जाते हैं तो शायद ही ऐसा होगा कि आप कॉलेज में बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं. और ये प्रैक्टिकली हम सबको पता है कि कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है. हाँ, होते हैं कुछ कुछ लेक्चर्स जिसमें मजा आता है, ध्यान लगता है, नोट्स बनाने होते हैं वगैरह वगैरह.
और कोई कोई लेक्चर तो ऐसे ही होता है, हम अटेंडेंस के लिए खाली करते हैं, या चलो let me say that you are attending all the lectures, still you have a lot of time in college which just goes in vain, और बस ऐसे ही वेस्ट हो जाता है. ओके, ऐसे टाइम को आप यूज कर सकते हैं. you can prioritize your studies like in your own way. देखो, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे होते होंगे जब आपका शेड्यूल थोड़ा लाइट होता हो कंपैरेटिवली, है ना. 7 दिन तो आप नहीं पिले रहते हैं कॉलेज में. कॉलेज में भी कम से कम 1-2 दिन तो छुट्टी होती है, क्लासेस नहीं होती है, कम क्लासेस होती है. आजकल तो वैसे भी आना जाना बच रहा है, ट्रैवलिंग न्यूएंसेस कम है, सो सारी क्लासेस जूम पर हो रही हैं वगैरह वगैरह. तो इन चीज़ों का आप एडवांटेज उठा सकते हैं. तो जब आपका जिस दिन कम क्लासेस हो उस दिन यू कैन डू थ्योरी ऑफ मैथ्स, रीजनिंग, व्हाटएवर. आप थ्योरी पढ़िए और एक बेसिक सेट करिए, 10-12-15 क्वेश्चंस करके बैठ गया है. नाउ व्हाट इज इट अबाउट, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आजकल फोन में सब अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी तो आप फोटो खींच के ले जाओ, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है या जो भी बुक है उसकी. तो आपने मान लीजिए कि बुक का एक पेज का फोटो खींच लिया, उसमें देयर आर रफली 10 to 20 प्रॉब्लम्स. ओके, सो उसमें यू कैन यूज दीज फिलर टाइम्स कि आपके पास 10 मिनट है, आप किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हो कि वो आएगा आएगी तो हम कैंटीन जाएंगे साथ में वगैरह वगैरह. जो फिलर टाइम्स हैं इसको आप यूज कर सकते हो. तो वो 10 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन लगा दिए, 4 क्वेश्चन लगा दिए, 3 क्वेश्चन, तो ऐसे दिन भर में अगर आपने 5 फिलर टाइम्स निकाल लिए, सोचो 25 क्वेश्चन जो आपको अलग से बैठ के 1 घंटा लगता है उसको आपने यूज कर. ओके, ऐसे ही आपने एक रीडिंग पैसेज जो है, आपने कैट के पुराने पेपर्स के पीडीएफ रखे हुए हैं अपने फोन में या लैपटॉप में 1990s के लेवल. उस टाइम पे बहुत टफ नहीं है. देखो उस टाइम क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी 150 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स. नाउ देयर आर 100 क्वेश्चंस एंड 180 मिनट्स. ठीक है, तो ह्यूज डिफरेंस है. उस टाइम पे क्वेश्चंस इजी आते थे, टफ नहीं आते थे. तो आप एक आरसी पैसेज आपने 10 मिनट में क्रैक करने की कोशिश की, 15 मिनट है आपके पास, तो जो फिलर टाइम्स है ना इनका यूज करने की कोशिश. बेसिक्स जो हैं इनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए. कैलकुलेशन का प्रैक्टिस रोज करिए, आपको अलग से इनके लिए बैठने की जरूरत नहीं है. रीडिंग रोज करिए, इसके लिए अलग से बैठने की जरूरत नहीं है. जब आप कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत सारा टाइम दिन में हम यूं ही वेस्ट कर देते हैं, है ना. गेम खेल कर, इंस्टाग्राम चेक करके, फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप पर लगे हुए हैं. तो इनको यूज करके आप थोड़ा सा रीडिंग रोज करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस रोज करो, इससे क्या आप टच में बने रहेंगे. खुशी देखिए, जो वर्बल का जो है ना उसका आप टेंशन मत लो. वर्बल में आपको सिर्फ 2-3 चीजें करनी है फिलहाल, तो सिर्फ एक ही करोगे तो भी काम चलेगा. ओनली रीड, क्योंकि आपके पास वक्त ज्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ. रीड, जितना कोशिश करो आप रीडिंग करो. मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, कैट का जो वर्बल है सिर्फ रीडिंग, प्लेनली बाय रीडिंग इट कैन बी टेकन केयर ऑफ. आई हैड अ फ्रेंड नेम लव निगम. ओके, तो वो जो दोस्त था मेरा, वो एविड रीडर था, बहुत सारे किताबें उसने पढ़ रखे थे. मुझसे 2 साल छोटा ही था, बिकॉज ही हैड डन अ 3 year ग्रेजुएशन एंड नो ड्रॉप्स एटसेट्रा. ओके, तो उसने इतनी, उसकी रीडिंग अच्छी थी, उसने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया कैट के लिए. मतलब क्वांट वांट उसका वीक था तो वो करता था, मेरा रीडिंग वीक था तो मैं वो कोशिश करता था. तो उसका जो वर्बल एबिलिटी था ना उसमें ऐसे ही आ जाता था, उसका स्कोर जो है यूं ही आ जाता था. मतलब बहुत टफ आ गया तो अलग बात है, बट जनरली his responses used to be much sharper as compared to the other people's responses. तो ये जो देखो ज्यादा टाइम है आपके पास, इसमें आप ये चीजें जो एक्चुअली टाइम टेकिंग है, विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं. ओके, तो आप रीडिंग सब लोग कोशिश करिए. अच्छा, रीडिंग में रीडिंग करने से आपके 2 चीजें होती है. एक कंसंट्रेशन, दो नहीं कई चीजें होती हैं. दूसरा वोकैबुलरी बिल्डिंग,
Okay, so there are words that you don't literally know the meaning of, but उनके बार बार यूसेज से आपको आइडिया लग जाता है कि ये वर्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये एडजेक्टिव है, या ये नाउन है, ये क्या है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है. ओके, तो उसके अलावा जब आप रीड ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि ये जो है, ये वर्ड मुझे रोज दिखता है, तो एक दिन आप उसको ढूंढ ही लोगे, और क्योंकि वो रोज दिखता है तो आपको वो याद भी हो जाएगा. वोकैबुलरी आपकी तब तक बिल्ड नहीं होगी जब तक आप उसे यूज ना करें अपनी भाषा में, या आप उसे उसके साथ कोई अपनी लाइफ का इंस्टेंस एसोसिएट ना कर दें. जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक वोकैबुलरी आपकी बिल्ड नहीं होगी. ठीक है, ये जो ग्रेट बुक्स हैं वोकैबुलरी की, जैसे कि वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस एटसेट्रा, इनमें भी यही किया है. एक एक वर्ड को इतनी बार यूज करवाया है, आपके सबकॉन्शियस में फिट कर दिया है कि आपको याद हो जाता है. ठीक है, रूट वर्ड्स याद करवा दिए. एमबी मतलब 2 होता है, बाय मतलब 2 होता है, तो एमबी डेक्स्ट्रस हो गया कि दोनों हाथों यूज करने वाला, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो जैसे आपने एमबी डेक्स्ट्रस पढ़ा, एमबी डेक्स्ट्रस इज अ पर्सन who can use both his hands. तो जैसे अभी आजकल सुशांत सिंह राजपूत के केस का इतना ज्यादा, तो मैंने एक दिन पढ़ा था कि सुशांत सिंह राजपूत was ambidextrous. अपने आप को ऐसा ट्रेन किया था कि वो दोनों हाथों को यूज कर सकता, दोनों हाथों से लिख सकता था, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इस तरह से चीजें जो है, इस तरह से आप एसोसिएट कर सकते हो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को, किसी अपने लाइफ स्टोरी को, तो उस तरह से वो कैप बिल्ड हो जाती है. ओके, तो रीडिंग करिए. जब आपको रीडिंग की थोड़ी हैबिट, तो रीडिंग का क्या है कि यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द स्टफ दैट यू लाइक. जैसे मुझे फिल्मों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, म्यूजिक के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है. ओके, फिलोसफी पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है. तो इस तरह से एक दो एरियाज आपके पास भी होंगे. किसी को पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता होगा, जिसके बारे में नॉलेज है ना. किसी को आर्ट्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को साइंस के बारे में. तो जो आपको आपका फेवरेट एरिया है वहां से पढ़ना शुरू करिए. छोटे छोटे ब्लॉग्स होते हैं. एक ऐप है, सबको मालूम होगा, एंड्रॉइड पे, इन शॉर्ट्स. वहां पे आपको रेगुलर न्यूज जो है वो 60 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको डिफाइन की होती है, डिस्क्राइब की होती है. तो आप उसमें अपना न्यूज भी पढ़ सकते हो, और जो आपको अच्छा लगे उसमें राइट स्वाइप करिए तो पूरा डिटेल में भी आ जाता है, पूरा लिंक. तो वहां से आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं. तो ये एक चीज हो गई. कोई एक फेवरेट एरिया, कोई हर तरह की चीज पढ़नी चाहिए. फिक्शन भी पढ़ना चाहिए, उसका एक अलग एडवांटेज होता है. उस फिक्शन से आप डायरेक्ट स्पीड सीखते हैं. ठीक है, तो रीडिंग आप करिए. कुछ दिन रीडिंग करने के बाद देन यू स्टार्ट सॉल्विंग 1 or 2 पैसेजेस डेली. ठीक है, थोड़ा टाइम आपका जो है कभी कम कभी ज्यादा है, तो एक पैसेज तो रोज सॉल्व करो ही. कभी कभी टाइम मिलता है तो 2 पैसेजेस सॉल्व करो, पुराने कैट पेपर्स 1990s. देखिए क्या होता है. बहुत से बहुत क्या होगा, सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. 10 दिन होंगे, 11वें दिन नहीं होंगे. एंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट. तो एप्स के बारे में देखिए, आई कुड टेल यू दैट निमोनिक्स होते हैं. कुछ लोग उसको ऐसे स्पेल करते हैं, कुछ लोग ऐसे स्पेल करते हैं. ठीक है, डिपेंड्स. निमोनिक्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू रिमेम्बर अ वर्ड. ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीका है निमोनिक जो है किसी वर्ड को याद करने का. तो आप जरा इसके बारे में देखिएगा. इसके ऊपर एप्स हैं, तो कई सारे वर्ड्स आपको इसमें याद हो जाएंगे देखते ही. मतलब एक बार पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा, आपको याद हो जाएंगे. तो निमोनिक्स के ऊपर कोई अच्छा सा ऐप डाउनलोड कर लीजिए. एक ऐप मैंने आपको बताया है, एवरी नाउ एंड देन, पजल पेज करके एक ऐप है एंड्रॉइड पर. ठीक है, iOS पे भी होगा. पजल पेज करके एक ऐप है. इसमें आप पजल्स आती हैं, पजल्स वही रेगुलर पजल्स जो अखबार वाली पजल्स होती हैं. सुडोकू, कापुरो, किलर सुडोकू, फुटोशिकी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे करके जापानीज पजल्स हैं. बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी. कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि रीजनिंग में उनका दिमाग नहीं चलता. क्लास तो कर लेते हैं, वो सीखना भी चाहते हैं, डेडिकेटेड भी हैं, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा. तो बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं. उनको लगता है कि वो कमजोर दिमाग है, वो मंद बुद्धि है, और फिर वो यही सोचते सोचते अपनी पूरी जिंदगी निकाल. ऐसा मत करिए. आप हर चीज डेवलप की जा सकती है ना. IQ सब बढ़ाया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. हमारा सब बच्चे बराबर पैदा होते हैं. देखो, हाँ, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है किसी को तो अलग बात है, बट
हर बच्चा बराबर पैदा होता है, वो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो खुद को क्या सजेशन देता है, उसको सोसाइटी वाले, उसके माँ बाप उसको क्या सजेशन देते हैं, उस हिसाब से उसका मेंटल ग्रोथ होता है ना। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं या कई बच्चे भी होते हैं जो अपने आप ऐसे सोचते हैं यार वो तेज है यार, उसकी बात अलग है, उसके पापा भी तेज है, ये भी तेज है, इसलिए वो तेज है। वो लोग तेज दिमाग के लोग हैं, ठीक है। मैं तो बैंक क्लर्क का बेटा हूँ, वो तो IITN का बेटा है। ये सब थॉट प्रोसेस जो है, ये आपका बचपन आपको ऐसे डिफाइन करता है और आपको कमजोर बनाता है, और आप यही सजेशन के साथ बड़े होते हो कि हम वीक हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस दिन आप ये सोचने लगो कि कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं है, सब चीज की टेक्निक होती है, सब चीज का प्रैक्टिस होता है, हो जाएगा। तो आप पजल पेज में आपको बता रहा हूँ वो टेक्निक, पजल पेज ऐप में जाकर आप इजी लेवल के पजल सॉल्व करो डेली बेसिस पर, कभी कम कभी ज्यादा, और आपका मेंटल ग्रोथ, वो जो है ना रीजनिंग एबिलिटी, आपका वापस आने लगेगा जो खो गया है। ओके, कैलकुलेशन का डेली प्रैक्टिस करिए। कैलकुलेशन, रीजनिंग, इफ दीज टू थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, तो आपको क्वांट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक्स हम आपको सिखा देंगे। देखो, ये इकलौता कोचिंग है जहाँ पे MDC क्लासेस होती है, कहीं होती नहीं है। Okay, so I introduced MDC classes way back 5 years ago, and MDC classes became a huge hit from Mindworks. बहुत सारे लोग इंक्वायर करते थे कि आपके हम इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि MDC क्लासेस होती है, मैथ डेवलपमेंट क्लास, तो बेसिक्स पढ़ाते हैं, उसमें ज्यादा टफ ऑफ नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को आइडिया है, तो वो होगा, फिर रेगुलर क्लास होगा, ये होगा, आपके पास किताबें हैं, बहुत सारा ऑनलाइन रिसोर्स है, सब हो जाएगा। प्रॉब्लम बेसिक्स का नहीं होता है लोगों को, प्रॉब्लम ये होता है रीजनिंग और कैलकुलेशन, उसके ऊपर काम करिए। बबल के अंदर रीडिंग के ऊपर काम करिए। DI का टेंशन अभी छोड़ दो, रीजनिंग पे काम करो। DI 2 महीने बाद बात करेंगे। DI आप 1 महीने में भी बना सकते हो, ओके, बट इट डज नॉट मीन कि आप छोड़ दो उसको और अगले साल अक्टूबर में, ऐसा नहीं है। व्हाट आई मीन इज कि आपका जब बेसिक्स तैयार हो जाए ना, रेशियो, परसेंट, एवरेज, इनके एप्लीकेशन, तो अपने आप DI आपका अच्छा होने लगेगा। बाकी कैलकुलेशन है, टिप्स हैं, वो सब चीजें हैं। इस एक्चुअली मुझे लगता है कैट का तैयारी करना, उसके लिए IQ और ये सारी चीजें और बहुत सारा टाइम, बहुत सारा प्रैक्टिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा चीज वो है कि हिम्मत, बार बार खुद को पॉजिटिव सजेशंस देना, दैट यू आर गुड एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट एंड यू आर गोइंग टू मेक इट, एंड इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम यार, विद द राइट अप्रोच। आप बहुत कम दिन का एवरेज 1 घंटा 1.5 घंटा देकर भी स्टार्टिंग नाउ, ओके। People who are joining now, I would not say this to them. Joining now for this year CAT, but people who are joining now for next year CAT, आप एवरेज दिन का 1 घंटा भी देंगे ना, 1.5 घंटा, तो भी आपकी तैयारी 1 साल में हो जाएगी ऑन एन एवरेज। कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी बस को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ता है, वाली बात है, शायद उनको थोड़ा ज्यादा देना पड़े, लेकिन एवरेज इतना टाइम देकर भी दिन भर में आप काम चला ले जाओगे। लेकिन लाइफ में सबसे मुश्किल जो चीज है वो है रेगुलरिटी। एक दिन का जो एंथुजियाज्म होता है, ठीक है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि पता चला कि नरेंद्र मोदी फीके पड़ जाए उसके सामने। आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन एंड दीज बिग एक्टर्स, यू नो, हु हैव अचीव्ड, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है लाइफ में। ओके, बिग पॉलिटिशियंस, बिग स्पोर्ट्स पर्सन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये भी आपके सामने पानी भरेंगे जो पहले दिन एंथुजियाज्म होता है। बट व्हाट मेक्स दोज पीपल ग्रेट इज कि उनका एंथुजियाज्म बरकरार रहता है और आपका एंथुजियाज्म एक हफ्ते बाद चला जाता है। आप जिम ज्वाइन करते हैं कि मैं बहुत अच्छी बॉडी बनाऊंगा, 6 दिन बाद आप जाना छोड़ देते हैं। आप कैट की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, 1 हफ्ते बाद आप छोड़ देते हैं। थिंक अबाउट इट, यू नो, इफ यू think about it, you will find that this is sole reason why people give up and why people are not able to make it. Okay, GMAT साइट के मैं आपको बताता हूँ अभी, gmatclub.com। श्रेया पूछ रहे हैं कि वो साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, प्रोफाइल के लिए क्या करना चाहिए related to mental focus। नहीं, don't do any courses are not going to help। देखो, जो जमाना कर रहा है ना, दुनिया में लोग कर रहे हैं, देखो वो काम तो करो ही मत। मैं थोड़ा अलग सजेशन देता हूँ, ओके, सो बियर विद मी प्लीज, दैट जो सब आपको सजेस्ट करना, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, किसी को एक्चुअली कोई आइडिया नहीं, किसी को गेम प्लान नहीं पता। अगर इतना ही होता तो स्ट्रगल कर रहे होते। तो लोगों के कहने पे मत जाइए, कोई भी कोर्स करके आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, किताबी नॉलेज मिल जाएगी। यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एनीवे, तो
आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो वैसे ही दो लोगों से थोड़ा अलग है. जनरली पीपल आर इंजीनियर्स, बीकॉम, वर्किंग पीपल, इस तरह के लोग ज्यादा होते हैं. साइकोलॉजी, मेडिकल, इसके स्टूडेंट्स कम होते हैं. तो वैसे ही आपका थोड़ा अलग है. आप बस अपने कैट स्कोर पर ध्यान दीजिए, अपना मेंटल एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड अप्रोच जो है वो पॉजिटिव रखिए. रेस्ट थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ. मैंने आपको बताया ना मेरा कितना गंदा प्रोफाइल था, लगातार गिरते हुए मार्क्स, 2 बार ईयर गैप्स, फिर भी एक अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन दे दिया, है ना. तो आप कैट स्कोर पर ध्यान दीजिए, अपने एटीट्यूड पर ध्यान दीजिए, रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ. फिलहाल प्रोफाइल बिल्डिंग और इस सब के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ जाएं और कैट में आ जाए 60% आए, फिर क्या फायदा होगा, है ना. कैट में आप 99 लाओ, 98 लाओ, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि जो है आपको कॉल ना भेजे. माना आया अहमदाबाद नहीं भेजेगा, बैंगलोर नहीं भेजेगा, कैलकाटा नहीं भेजेगा, तो क्या हुआ, एफएमएस भेज देगा, एसपी जैन भेज देगा, एमडीआई भेज देगा, ग्रेट कॉलेजेस. ऐसा थोड़ी है कि एसपी जैन के हर बच्चे की जॉब आईएम अहमदाबाद के हर बच्चे की जॉब से खराब होती है. 50% of the SP Jain students score or get better jobs than 50% of IIM Ahmedabad students. ऐसा होता है. तो ये चीजें आपको सब ब्रॉड थिंकिंग रखनी चाहिए. ठीक है. मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस आंसर किए. रीडिंग बोरिंग हो सकता है, आई अंडरस्टैंड. तो मैंने आपको बोला कि वो पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है. धीरे धीरे ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है. पहले दिन आप एकदम से टफ नहीं उठा सकते. ओके. अनुष्का सिंह, दिस इज अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन कि आई एम अहमदाबाद के लिए कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए. अगर मैं ऑब्जेक्टिवली आंसर करूं मैं कहूंगा 90. Last few years में there have been instances where 89 and 90 percentile people have got calls from IIM Ahmedabad, and there have been instances where 99.5 percentile people have not got any calls from IIM Ahmedabad. हर साल ऐसे लोग होते हैं. एक्चुअली परसेंटाइल से सिर्फ नहीं होता है, लेकिन अगर आपका ग्रेट परसेंटाइल है तो आपका भविष्य उज्जवल है. if with good percentile, if you have a good optimistic mindset also, तो आपका भविष्य उज्जवल है. कोई ना कोई ग्रेट कॉलेज आपको सीट प्रोवाइड करेगा, वहां जाके आप ग्रेट करेंगे. ठीक है. तो ये ध्यान में रखिए, IIM Ahmedabad is not the only train that takes you to your destination. okay? मार्क्स वार्क्स देखो कोई फिक्स्ड नहीं है. पेपर इजी बनता है और पेपर टफ बनता है, तो इन दोनों केस में 20 मार्क्स तक का फर्क होता है 99 परसेंटाइल के लिए. ठीक है. तो जैसे 2018 में पेपर थोड़ा सा टफ बन गया था, थोड़ा सा, तो 150 पर ही 99 आ गया था आउट ऑफ 300, आधे 150 मार्क्स. और पिछले साल आसान बन गया था तो 170 पे आ रहा है. okay? 170 पे 99 परसेंटाइल आ रहा है. 20 नंबर तक का फर्क पड़ जाता है, मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस इन कैट, उतना फर्क पड़ जाता है. तो मैं आपको बताता हूँ कि CAT 2018 quant was a little difficult compared to last year 2019 CAT. तो 2018 में I scored 67 और 68 marks out of 100 या 63 में भी. okay? 20 हाँ 62 63 मार्क्स थे मेरे. 69 मार्क्स का तो मैंने अटेम्प्ट ही किया था, उसमें से 2 क्वेश्चन गलत ही हो गए थे, तो 62 ऐसे ही थे मेरे मार्क्स और 100 में से क्वांट में, और उसमें मेरा परसेंटाइल था 99.63. ओके. और पिछले साल मेरे 82 मार्क्स थे 100 क्वांट, 99.92 था. तो आप देख रहे हैं 99.63 से 99.92, जस्ट 0.3 परसेंटाइल पॉइंट्स का फर्क है. और स्कोर में कितना ह्यूज जंप है. यहाँ पे 61 62 स्कोर था और यहाँ पे 82 स्कोर था. देखो 7 क्वेश्चंस कम किए, ज्यादा किए, और यहाँ पे सिर्फ 0.3 का अंतर पड़ा, है ना. तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लो दिमाग में. जो ऊपर के परसेंटाइल होते हैं उनमें बहुत ह्यूज गैप्स होते हैं. ओके. प्लस क्वेश्चन पेपर आसान और टफ बनने का भी होता है. तो जो टफ बनता है तो यू कैन एक्चुअली यू आर रिलैक्स्ड बाय 5 क्वेश्चंस. आप 5 क्वेश्चन कम करोगे तो भी काम हो जाएगा. आस्था, आप अकेले नहीं हो बेटा जिसको ऐसा लगता है कि उनका मैथ्स वीक है.
अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर मेरे वर्ड्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि मैं आपकी नैया पार लगवा सकता हूँ, तो फिर आंख बंद करके मान के चलो, आपको कैट के लिए अच्छी मैथ्स चाहिए ही नहीं, है ना। आपको बेसिक मैथ चाहिए, 8th तक का मैथ्स अच्छा चाहिए, ठीक है? अच्छा भी नहीं, मतलब उसमें भी कुछ चीजें अच्छी चाहिए बस। आपको क्या अच्छा होना चाहिए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डबलिंग, हाफिंग, ये अच्छा होना चाहिए। इसके लिए तो देखो आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना बेसिक्स से। ओके, तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने आपको जुगाड़ बताया, ये काम करिए। डोंट बी अफ्रेड, आई विल टेक क्लासेस, आई विल टेल यू थिंग्स and you will realize in the class that you can actually follow। लेकिन वही अगर ये चीजें आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो क्लास में आपको फिर पीछे होने वाली फीलिंग आएगी। ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे लोग आंसर दे दे रहे हैं, मैं फिर फिसड्डी रह गया, और मैं फिर वो प्रॉब्लम उसका ये है कि रीजनिंग और कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। इनकी प्रैक्टिस करो और रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, ट्रस्ट मी। ओके, स्टडी प्लान में मैं आपको वैसे क्लास में बताता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने आपको बोला ना, आप बेसिक्स की तैयारी करिए, रीडिंग करिए, रीजनिंग डेवलप करो, कैलकुलेशन डेवलप करो। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और भी करें, तो मैं आपको इतना जरूर करूंगा कि स्कूल बुक्स के लेवल पे जाकर एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, फ्री में अवेलेबल है बहुत सारी वेबसाइट्स पर, पीडीएफ फॉर्मेट में। और उसमें आप अलजेब्रा के बेसिक्स, ओनली 6th 7th 8th स्टैंडर्ड, नॉट मोर देन दैट। ओके, जो लोग उतने वीक अगर हैं, मैंने देखा है कि जो लोग वीक बोलते हैं अपने आप को, उनको थोड़ा बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि वो 6th 7th लेवल का मैथ्स नहीं जानते। ठीक है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, इक्वेशन प्रॉब्लम्स, एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, 6th to 8th स्टैंडर्ड ओनली, 11th 12th तक तो जाना ही नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री बेसिक्स हो गया, इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शन, डेसिमल हो गया, नंबर्स बेसिक्स हो गया, नोइंग योर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब अगर आप स्कूल बुक से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक तो आसान लगेगा, क्योंकि 6th लेवल का आपको तो लगता है 6th के बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, तो उसके लेवल का पढ़ना पड़े तो बहुत आसान लगेगा, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो ये आप करके रखिए, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप ये करिए, ट्रस्ट मी, the key to great percentiles is not running after LOD 3 level questions or difficult questions। किसी को कुछ हासिल नहीं होता टफ क्वेश्चंस करने से। इजी क्वेश्चन को 4 तरह से सॉल्व करो, वो आपको 10 गुना ज्यादा फायदा देगा, rather than wasting your time running after big difficult questions, आधे आधे पेज का जो क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसके ऊपर अगर काम कर सकते हो तो कर लो, वरना इसका भी हम काम करवाते हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर आप अपने से एक इनिशिएटिव लेते हो तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, प्लस आपको क्लास में एक अच्छी ग्रेट फीलिंग आती है कि आपको पहले से आता है, एंड देन यू विल बी एबल टू read between the lines and listen the things that other people are not able to listen to। okay? ये करिए, टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं ये पूरा, मैंने 2 मिनट बोला था और आधा घंटा लग गया, लेकिन आई थिंक दिस हाफ एन आवर वाज वर्थ इट। सब कुछ यहाँ है ना, सारा का सारा जो है एक्चुअली यहाँ भी नहीं, यहाँ है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो आप जब हम बोलते हैं क्लास में तो आप करते हो, डरिए मत, सबसे पहले डर निकाल दीजिए, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये क्वांट है, एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड क्वांट्स। ओके, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। There are a lot of good mathematics people who scored 98 and 99 in board exams and are not able to solve basic questions of CAT. And there have been second division guys who have done wonderfully well. कॉमर्स विदाउट मैथ्स का एक बच्चा है जो जीमैट में और कैट में दोनों में 99 परसेंटाइल लाया था, 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। तो प्लीज गेट आउट ऑफ दैट शेल दैट इंजीनियर्स को अच्छा आता है और ऐसा वैसा। मैं हर साल ऐसे दर्जनों इंजीनियर्स को पढ़ाता हूँ जो 6-6 महीने यहीं अटके रहते हैं,
कि 3:5 में अगर 330 है तो 550 क्यों हो गया, वो यहीं अटके रहते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ नहीं है ना, ये सब आपकी दिमागी फितूर है। तो आप खुद को सजेशन देंगे अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस को, वैसा ही वो आपको बनाएगा। Keep telling yourself that you are going to crack it, you are going to make it in the exam, and regular रहिए। कैपिटल लेटर्स में ये एक ऐसी चीज है जो आपको जीत दिलाएगी। बहुत टफ क्वेश्चंस और बहुत ये वाला टेस्ट और वो वाले सर और ये वाला नोट्स, ये सब करते हैं। जो रेगुलरली करता है, कम करो, रेगुलरली करो। आप उतना ही काम उठाओ जो आप रोज कर पाओ। मार्क माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। अगर आप एक दिन जम के मेहनत करेंगे ना और अगले दिन नहीं कर पाएंगे तो आपको वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। यहाँ पे ट्रस्ट मी, बहुत डैमेज करता है। आपको लगता है कि आप खुद से हार गए। इससे अच्छा आप ऐसा टारगेट पकड़ो जो आप रोज अचीव कर सकते। थिंक अबाउट इट कि आपके दिन कैसे बीतते हैं। एक्सेप्शनल डेज की बात अलग है, साल में 3, 4, 5 दिन, 10 दिन एग्जाम होता है, वो छोड़ दो, ठीक है। साल के 365 दिन में से 300 दिन आपके कैसे बीतते हैं। आप कौन सा ऐसा टारगेट ले सकते हो जो आप रोज अचीव कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ उतना करने को कहा है। मैंने आपको कहा है कि रोज सुडोकू का करो, सॉल्व कर लिया करो, कैलकुलेशन की 10 मिनट प्रैक्टिस कर लिया करो, 2 आर्टिकल पढ़ लिया करो, एक आरसी पैसेज कर लिया, इतना आप रोज करिए। इसके अलावा आप जो करेंगे सब भूल सकते। तो आप वो टारगेट लीजिए जो आप रोज करेंगे। रेगुलर रहेंगे ना, वो आपका भगवान है, वो आपको सब दिला देगा। ओके, तो ये प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हम हमारे देश में ग्रेजुएशन जैसे पास करते हैं ना, आखिरी एक हफ्ता पढ़ के, 10 दिन पढ़ के, कैट की जर्नी बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां आखिरी हफ्ते 10 दिन में आप जितना पढ़ोगे उतना आपका एग्जाम खराब होगा। शुरू में आप जितना सॉलिड और जितना रेगुलरली रोज थोड़ा 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 थोड़ा, आप आज थोड़ा सा काम करो, कल उससे 1% ज्यादा करना, परसों उससे 1% ज्यादा करना। अगर आप आज बहुत सारा करोगे, कल 1% कम, परसों 1% कम, तो आपका सब बेकार होगा। रोज थोड़ा थोड़ा करिए, ठीक है। दैट इज माई की। चलिए, तो वाह, ये बात हो गई। अब अच्छा, आज की क्लास का टाइमिंग 8 से 10 था या 8 से 9:30 था? What were you informed? Was it 8 to 9:30 था? ओके, चलो मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं। मल्टीप्लीकेशन में आपको 2 डिजिट बाय 2 डिजिट बता दिया, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट नहीं, 8 ऑनवर्ड से था, बट व्हाट वाज इट मेंशन्ड 8 to 10 और 8 to 9:30? नहीं क्लियर किया गया, नहीं देख। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया है 2 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, और 3 डिजिट बाय 3 डिजिट भी होता है, लेकिन आज ही बताऊंगा तो वो थोड़ा वो हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। अभी आप 2 डिजिट बाय 2 डिजिट करिए, और 3 डिजिट बाय 3 डिजिट जो है वो हम आते जाते नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे। अभी जो मैं आपको जाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये है कि फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में 1-2 चीजें समझ लीजिए, बहुत काम आएंगी। सबसे पहले तो you should know the term proper fraction. Proper fraction is a jargon which you will find in your school books also. Proper fraction basically क्या होता है, मैं proper fraction को बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन करूँ तो ऐसे बोलूंगा कि जब आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो उसका इंटीजर पार्ट 0 आएगा, 0 point something, 0 point something is your proper fraction. प्लस हो या माइनस हो डजंट मैटर, बट 0 point something, 1.2, 0.3, 0.4, 0.5 point something फ्रैक्शन तो वो भी होते हैं, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग वाले प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। मतलब कहने का कि न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ओके, सो 4/5, 6/19, 1/100, even 99/100, all these are proper fractions. Numerator are smaller and denominators are bigger. So
नेगेटिव और पॉजिटिव डजंट मैटर, बट दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं दैट यू शुड नो। वन, दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें से कोई भी नंबर उठा लो, आप किसी भी नंबर में ये मल्टीप्लाई कर दो, उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। ओके, तो जैसे आपने 10 में 4/5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 बन गया। 6/19 मल्टीप्लाई किया तो वो भी छोटा हो गया। 100 में 6/19 मल्टीप्लाई किया, छोटा हो गया। ओके, 30 से भी कम आंसर आ गया, 30 आंसर के आसपास आंसर आ गया। ओके, तो किसी भी नंबर में आप जब प्रॉपर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कम करता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का काम है छोटा करना। ये बात हम परसेंटेज चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट आपने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है। अच्छा हाँ, मुझे ये भी अच्छा याद आया, जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है उन लोगों से मैं बोल दूं कि परसेंट चेंज का क्लास है हमारा इस वीक। उसके पहले परसेंटेज क्लास का वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? आपको उस क्लास में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर बिना देखे भी आओगे तो भी वो क्लास समझ में आएगी, बट दैट वाओ फीलिंग जो है ना, दैट अमेजिंग फीलिंग, दैट you will get if you have already watched that video and made good notes of. Okay, तो पहला काम हुआ ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू छोटा करता है। दूसरी बात, ओके, ये चारों केसेस में कुछ ऑब्जर्वेशन है क्या बेटा? ये तो आपको संजीता मैम बता पाएंगी, क्योंकि वो वीडियो तो पास भी नहीं। ये जो जूम वाले वीडियोस होते हैं ना, ये मेरे पास नहीं आते। वेबिनार वाले वीडियोस तो मेरे पास भी आते हैं। मान लो कि नहीं मिल रहा है किसी को तो मैं भी भेज सकता हूँ, लेकिन जूम वाले वीडियोस संजीता मैम के पास जाते हैं, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि कहाँ मिले। हाँ, तो आपका ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, करेक्ट? और सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है, ऑल द फ्रैक्शंस आर लाइक दिस, x ओवर x प्लस 5। सारे के सारे फ्रैक्शंस ऐसे हैं, x ओवर x प्लस 5। ऑब्जर्व हो गया ये बेसिक ऑब्जर्व। ओके, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी आपको कुछ फ्रैक्शंस ऐसे मिले जिसमें एक तो सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हो, दूसरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस हो, तो इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत आसान है। सो लेट्स कॉल देम ABCD। ओके, तो जिस फ्रैक्शन में छोटे नंबर्स इन्वॉल्व है वो छोटा है, जिसमें बड़े नंबर्स इन्वॉल्व है वो बड़ा है। B is smallest, followed by A, then D, then C. Another class at 9:45. Okay. चलो, तो मैं इनके डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ फिर, ठीक है? तो ये आप समझ लीजिए कि जब भी कभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस होगा तो आप ये समझ लो कि छोटे नंबर्स वाला छोटा नंबर है और बड़े डिजिट्स वाला बड़ा नंबर। ओके, अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि नहीं भी होगा, जैसे मान लो कि 3/5 हो गया और उधर 17/20 हो गया। वैसे तो बहुत आसान एग्जाम्पल लिया है, इसको आप बोलोगे कि ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 12/20 बन जाएगा, हेंस दिस इज बिगर, ठीक है? लेकिन मान लो कि आपने ऐसा नहीं देखा, डिनोमिनेटर इतने भी छोटे नहीं है, इतने भी आसान नहीं है कि आपने सेम बना लिया बहुत आसानी से। तो मान लो अगर ऐसा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों में सेम डिफरेंस हो गया 6 का। अब आपका ये चीज काम करेगा, छोटे नंबर्स वाला छोटा नंबर एंड बड़े नंबर वाला बड़ा नंबर, है ना? तो कभी भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस के बीच में बड़ा छोटा देखना हो तो एक काम आप ये कर सकते हो। एक और काम आप क्या कर सकते हो, कभी कभी बहुत क्लोज दिखते हैं, जैसे कि
9/19 एंड 8/17। अच्छा, इनके बीच में तो डिफरेंस भी देखो 10 का है और 9 का है, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये करने में फिर ज्यादा टेंशन होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, इनको उल्टा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 प्लस समथिंग है, ये भी 2 प्लस समथिंग है। तो बता सकते हो भाई 1/3 यानी कि 3/9 और 1/8 में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो जिसका रेसिप्रोकल बड़ा वो नंबर छोटा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपके बहुत काम आती है। डेटा इंटरप्रिटेशन में ये स्किल आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन में ये स्किल बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बताओ डेटा को देखकर कि कौन से साल में परसेंट इंक्रीज सबसे ज्यादा हो, और परसेंट तो फ्रैक्शन होता है ना, परसेंट फ्रैक्शन होता है। तो आप हर बार फ्रैक्शंस निकाल के या तो आप सबको परसेंट में कन्वर्ट करो, वो तो खून पी जाएगा आपका। तो आपको बेसिकली फ्रैक्शंस कंपेयर करने होंगे, जिस साल का फ्रैक्शन बढ़ा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कंपैरिजन इससे आपका बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास खैर कैलकुलेशन में तो हम कम बात कर पाए, लेकिन आई होप दैट यू आल्सो फाइंड कि जो हमने बात की कैलकुलेशन में, देखो बहुत सारे टिप्स हैं, जितना जितना क्लास लो उतना कम है। बाकी क्वेश्चंस में करते करते भी आपको ऑब्जर्व होगा, आप वैसे भी सीख सकते हो। मेजर मेजर स्किल्स मैंने आपको बता दी हैं। पिछले क्लास का भी वीडियो देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। और आई होप कि जो मैंने चीजें आज कही आपको वो आप याद रखिएगा, और जो आपको अगर अच्छी फीलिंग आ रही है या मोटिवेशन फील हो रहा है, उस मोटिवेशन को जिंदा रखना। ओके, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको अभी से 30-40 डेज बाद भी उतना ही मोटिवेशन फील होता है जितना आज होता है, तो समझ लो कि आप जीत जाओगे। आप आपका काम हो गया, आप कर ले जाओगे। और अगर आपको 8-10 दिन बाद ऐसा लगने लगा कि अरे ठीक है, क्लास तो क्या है, हम वीडियो देख लेंगे, वीडियो तो मिलता ही है, लाइव नहीं भी देखेंगे, इस तरह की फीलिंग अगर आने लगी, तो समझ लो कि आपका मोटिवेशन अब डाउन होने लगा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिकली क्लास लाइव नहीं करते और वीडियो देखते हैं, उनकी अलग बात है। तो अगर ऐसा लगता है कि यार हमें डाउट तो कुछ आता नहीं है क्लास में, तो हम 1.5 घंटे की क्लास में करें, वीडियो देख लेंगे, आधे घंटे में हम देख लेंगे, बेकार के पार्ट्स हम फॉरवर्ड कर देंगे। या कुछ लोगों का ऐसा है जो लाइव भी करते हैं फिर वीडियो भी देखते हैं। सबका अलग अलग अपना लर्निंग कर्व होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो प्लीज बी रेगुलर। ओके, वर्क एट द स्मॉलेस्ट थिंग्स फर्स्ट, वही आपको जीत दिलाती है। कैलकुलेशन, रीडिंग, रीजनिंग, पजल्स, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, वोकैबुलरी थोड़ा बहुत, ये आपको जीत दिलाएंगी। टफ क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ तो आपको नहीं जीत दिलाएगा, यही चीजें जीत। चलो guys, you have another class coming up. I'll not take much of your time. Thank you so much for patiently listening to me and valuing the things that I said to you. And I'll see you tomorrow again. Another class. आपके पास तो एडवांटेज है, आप कैट 20 वाली क्लास में भी आके बैठ के देख सकते हो। चलो गाइस, देन थैंक यू सो मच, सी यू अगेन। संजीता मैम से प्लीज बात कर लेना और पूछ लेना कि आपको वीडियो कहाँ कैसे एक्सेसिबल है। ओके।